سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کھانا معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سورۃ قریش پڑھنے والوں کو کبھی گیس وغیرہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ دبلا ہونا ہے تو آپ لیمبو والا شربت پی لیا کریں۔ جن لوگوں کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہے یا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہے، وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش کی پی لیا کریں۔ سچا انسان کو جذباتی تو ہوتا ہے سچا انسان، لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم آپ کا جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح کے دن، جمعے کے دن صبح کو ناخن کاٹ لیا کریں، اس سے گھر میں نحوست نہیں آتی۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ نیم کے پتوں کا رس معدے کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کی بل کے پاس انڈوں کا خالی کھول رکھ دیں، چوہے خود بخود وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو بچوں کو کلونجی ابال کر پانی کے اندر پلائیں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے آپ کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے آپ کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ بدن میں خارش ہے یا درد رہتا ہے تو آپ گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کی درد اور خارش کا یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ زیادہ پریشانی آپ کے معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ شوگر کا استعمال نہ کریں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ دہی کو اگر آپ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کچے ناریل کے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ 4 سے 5 دن تک آپ کا دہی تازہ رہے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری زیادہ لگتی ہے۔ اگر آپ کے مسوڑوں میں درد ہے یا خون آتا ہے تو آپ لونگ کھائیں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو روزانہ اپنے سیب اور انار کا تازہ جوس استعمال کریں۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو اپنے انگوٹھے کو مٹی کے اندر زور سے دبائیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کریں، اس سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک آپ کے دل کو افاقہ پہنچتا ہے۔ لیمبو کا چھلکا چبانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا آئل استعمال کریں جو کبھی نہ جمتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو نمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لے، اس سے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ زیادہ بائیں جانب منہ کر کے سونے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز پر زنگ لگ جائے تو اس پر کھٹی دہی لگانے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگ زیادہ تر موٹے اور فیٹی ہوتے ہیں۔ ذہنی دباؤ آپ کے دل اور دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور غم آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ پالک کینسر جیسی موذی مرض سے آپ کو بچاتی ہے۔ جن افراد کو معدے کے پرابلم رہتے ہیں وہ انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ اجوائن کا زیادہ استعمال
जिगर की सोजश और जलन पैदा करता है। अगर आपको बगलम की प्रॉब्लम है तो कभी भी सर में टूटी हुई कंघी ना फेरें, इससे आपकी बगलम मज़ीद बढ़ जाएगी। मुसलसल परेशान रहने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, इसलिए डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें। अपने दिमाग को हमेशा तेज़ आप रखना चाहते हैं तो कभी भी पेट भर कर खाना ना खाएं। क्या आपको मालूम है कि सौंफ अफसर्दगी को दूर करती है, यादाश्त को बेहतर बनाती है। अखरोट ज़्यादा खाने से दिमाग की कमज़ोरी कभी नहीं होती। रात के वक्त कलवंजी इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक से महफूज रह सकते हैं। दुनिया में कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपको माँ जैसा प्यार और बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं दे सकता। अगर हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह पर आप टूथपेस्ट लगा दें। जो लोग अपनी जवानी में रूटीन से ज़्यादा दूध पीते हैं उनको बड़ी उम्र में जाकर हड्डियों और जोड़ों का दर्द नहीं रहता और उन पर बुढ़ापा देर से आता है। एलर्जी का मसला हो जाए तो खीरा दही में डालकर खा लें, एलर्जी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। जिस जगह पर स्वेलिंग हो जाए वहाँ बर्फ़ की टकोर करें, सूजन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है तो वो नीम गर्म दूध में रोगने बादाम डालकर पी लें, इंशाल्लाह कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। काली मिर्च का यूज़ करें। काली मिर्च आपके अंदर के निज़ाम को दुरुस्त करती है। पानी पीकर फ़ौरन सोने से आपके दिमाग को नुकसान हो सकता है। केला खाने से शहूद के अंदर बेपनाह इजाफा हो जाता है। हमेशा दुबली पतली और स्मार्ट नज़र आना चाहते हैं तो सोने से कबल लहसुन के तेल का एक कतरा नाक में डाल लिया करें। इससे पेट की चर्बी कम होती है, वज़न कम होता है और आप हमेशा जवान नज़र आती हैं। चेहरे पर प्याज का रस लगा देने से चेहरे के दाग, धब्बे और स्याहियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बदन पर दाने हैं तो कड़वे करेले का पानी भी लेने से दाने लगा लेने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें, आपको बदहज़मी नहीं होगी। जब भी हाथ और पाँव के नाखून काटो तो तेल लगाओ, इससे आपको दर्जा ज़ाइल फ़वाइद हासिल होंगे। खाने के बाद पानी का इस्तेमाल करने वालों का मैदा नकारा हो जाता है। जिस घर में प्याज का पौधा मौजूद है वहाँ पर बिच्छू नहीं आते। नीम गर्म दूध में रोगने बादाम मिलाकर पीने से नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। हामला औरतों के लिए सबसे बेहतरीन फल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों की जो पैदाइशी बीमारियां हैं उनके अंदर उनका ख़तरा कम हो जाता है। जो इंसान सब्र की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेता है वो इज़्ज़त और बुजुर्गी और एहतराम पाता है। चीनी ज़्यादा खाने से आपकी मर्दाना ताकत कमज़ोर हो जाती है। सोने से कबल किशमिश खा लेने से आपके बदन को ताकत मिलती है। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बिनाई के लिए मुज़रे सेहत है। लीमू आपके जिगर को साफ़ करने में सबसे मुफीद चीज़ है। खाली पेट अखरोट खा लेने से बाल बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। हल्दी के पाउडर में कलवंजी का पाउडर मिक्स करके गर्म दूध में डालकर पी लें, आपके मैदे का अल्सर ख़त्म हो जाएगा। फिर दही और शहद मास्क की तरह अपने चेहरे पर लगा लें तो चेहरे की झुर्रियों का खात्मा हो जाएगा। ज़्यादा चाय पीने से दांत गिरने लग जाते हैं। रोज़ाना एक केला खाने से आपका गुस्सा और ज़हनी दबाव और चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। गन्ने का रस पीने से बंद गला भी खुल जाता है। भिंडी का सालन खाओ, पेशाब खुलकर आएगा। शहतूत दिमाग के कमज़ोरी के लिए मुफीद है। अगर अपनी सेहत को आप हमेशा के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो चावलों के बाद कभी
दूध ना पिएं। दही में 2 दाने बादाम पीसकर और इसबगोल मिलाकर खा लें। बुढ़ापा फौरन गायब हो जाएगा। बार पेशाब आने का मसला भी आपका ख़त्म हो जाएगा। मैदा साफ होगा, स्किन आपकी चमकने लगेगी। जिन लोगों का मैदा ख़राब हो जाए या फिर हाजमे का कोई मसला पैदा हो जाए तो वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ लाजमी खा लिया करें। खाया पिया सब हज़म हो जाएगा। कलवंजी के 5 दाने रोज़ाना नहार मुँह खाने से जिस्म की चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। जो पाँव की रोज़ाना मालिश करके सोते हैं, ऐसा इंसान बहुत कम बीमार होता है। ख्वाब में खुद को आसमान पर उड़ते हुए देखना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की एक वाज़िया दलील है। अगर प्यास ना भी हो फिर भी पानी पी लिया करें, इससे आपके गुर्दे ज़िंदगी भर कभी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको बेख्वाबी की शिकायत है तो सोने से 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी से गुस्ल करें। नहायत ही पुरसुकून और आरामदेह नींद आएगी। ज़्यादा बाएं जानब सोने से दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। खामोशी गुस्से का सबसे बेहतरीन इलाज है। हर 2 दिन के बाद तोरी की सब्ज़ी खा लिया करें, आप में ताकत बेतहाशा आ जाएगी। खाने में बादियान का फूल इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द टाइट रहती है। ज़्यादातर घुटनों के बल बैठकर काम करने से आपके घुटनों में दर्द होने लगता है और घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। नींबू और खीरे का रस मिलाकर पीने से आपकी जिल्द साफ हो जाती है। दूध और दूसरी जलेबी खाने से सर का शदीद दर्द भी ठीक हो जाता है और आपको ज़हनी सुकून मिलता है। नीम के दरख्त की टहनी से अपने दांत को साफ़ करें, दांत बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो जाएंगे। ज़्यादा गर्म खाना आपके दिल और फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है। जिस्म को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखने के लिए सोने से पहले 1 दाना सौंफ का खाकर सो जाया करें। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं। आपके पेट में पानी भर जाने का खतरा बढ़ जाता है। जिस शख्स की नज़र कमज़ोर हो और वो 7 बादामों की गिरियाँ पीसकर आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। बुढ़ापा रोकने वाली 5 ग़िज़ाएँ: सब्ज़ चाय पिएं, अनार का जूस पिएं, मछली खाएं, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, अंजीर खाएं। इलायची का फल खाने से छाती की बगलम साफ़ हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रहमानु कहेगा, अल्लाह पाक उसे बहुत कुछ अता फरमाएगा, उसकी हर दुआ कबूल होती है। नींबू का इस्तेमाल जिगर की कमज़ोरी को दूर करता है। ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन की बीमारी आपको लग सकती है। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है, ऐसी औरतें गुस्सा बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि गुस्सा ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जो कि जल्द बुढ़ापा लाने में अहम किरदार अदा करता है। पानी कम पीने से आपके होंठ काले और बेरुखे हो जाते हैं। अगर आप अपने होंठों को गुलाबी करना चाहते हैं तो दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। सरसों का तेल आप अपनी पिंडलियों पर मसल देने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। जिन लोगों की सुनने की हिस्स बहुत अच्छी है, उनका मेंटल लेवल भी ज़हीन और वो मेंटली ज़हीन और तेज़ होते हैं। नबीना अफराद को आम इंसान की तरह ख्वाब नहीं आते। कच्चा अमरूद खाओ, आपकी सुस्ती और काहली दूर हो जाएगी। आब ज़मज़म का पानी जिस मकसद को जहन में रख कर पिया जाए, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा हो जाएगा। तितलियों के तेल में करेले पकाकर खाने से
शुगर का मर्ज कंट्रोल हो जाता है। तकिए के बगैर सोने से आपकी कमर मजबूत होती है। क्या आपको मालूम है कि एक तहकीक से पता चला है कि एक इंसान दूसरे के घर जाकर ज़्यादा खुश रहता है। इसकी बुनियादी वजह असूल, माहौल की तब्दीली और आपके जहन का मसरूफ़ हो जाना है। तेल से मालिश किया करें। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके आप मुतासरा जगह पर जेंटली उसको मसाज करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ऊँट की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से बीमारियां कभी आपके करीब नहीं आती। खून में हरकत पैदा करनी है तो सेब खाओ, इससे खून की हरकत और मूवमेंट तेज़ हो जाती है। कब्ज़ को ख़त्म करना है तो अपनी चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लीजिए करें, इससे कब्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर बुखार का मसला हो जाए तो अजवाइन का पानी पी लें, इससे आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा। नाराज़गी भी एक बड़े मज़े का रिश्ता है। इंसान अगले बंदे के दिलो दिमाग में रहता है। सूखे धनिए की चटनी बनाकर चाट लेने से खांसी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मुस्कुरा देना लड़ने से कई गुना बेहतर है। सुरख फालसा खाने से आपका मैदा ठंडा रहता है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। दोपहर को खाने के साथ प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करने से आपका मैदा हमेशा ठीक रहता है। नाराज़गी भी एक बड़े मज़े का रिश्ता है। इंसान अगले बंदे के दिलो दिमाग में रहता है। गन्ने का रस पीने से काला जरकान नहीं होता। छोटे बच्चों को खिलाओ और उनसे खेलो, इससे उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत होंगी। चटनी में काला नमक मिला देने से ये काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होती। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल में रह सकता है। अगर आप अपनी आंखों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की जेंटली मसाज करें। दूध सोडा आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है।